Hello friends, welcome to the Fundamental Pharmacy. Again, I have come up with a new video for you, that is Cracker MCQ series part 5, and it is very important as far as your pharma competitive exam are concerned. Okay, so welcome all of you to the Fundamental Pharmacy, all GPAT Niper Drug Inspector Pharmacist aspirants. In today's video, we are going to discuss the Cracker MCQ series part 5. So we have already completed part 1, part 2, part 3, part 4 of this MCQ series. These MCQs are very important as far as your pharmaco-competitive exams are concerned, particularly upcoming GPAT Niper exams. Very useful and knowledge oriented. So it's my request, please watch the complete video. Please like it, share with your friends, subscribe the channel, and do not forget to press the bell icon so that whenever I will upload a new video, you will get an instant notification. Okay, so let's start the video. So you know that in this MCQ series we are taking the MCQs and we are giving the explanation of it, so that at least 2 or 3 MCQs will be covered in one MCQs. So first MCQ, Mac-Lafferty rearrangement is related with. Mac-Lafferty rearrangement is related with. So your options are UV spectroscopy, NMR spectroscopy, mass spectroscopy, and IR spectroscopy. So out of these, your option C, mass spectroscopy, is the answer. Okay, Mac-Lafferty rearrangement is related with mass spectroscopy. But you should know what do you mean by Mac-Lafferty rearrangement. Okay, so you should know what do you mean by Mac-Lafferty rearrangement. So we will discuss it first. What do you mean by Mac-Lafferty rearrangement? So Mac-Lafferty rearrangement means what? So it is a type of fragmentation pattern in the mass spectroscopy. So there are different fragmentation pattern. There is a different fragmentation pattern for different compound depending upon the nature of compound, the chemical structure of that compound, how the chemical structure is there for a particular compound. So depending on that, there are different patterns of fragmentation. Okay, so if the compound having ketone aldehyde groups, okay, ketone or aldehyde groups, those compound which are having gamma hydrogen to the carbonyl in relation with the carbonyl compound. अगर कोई कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है और उसको gamma कार्बन आइटम है, उसके ऊपर हाइड्रोजन है, तो दैट gamma कार्बन जो भी है उसके हाइड्रोजन वो एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा और उसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा, उसको बोलते हैं मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट. ठीक है, तो मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट is very common fragmentation pattern, okay, that is observed in the mass spectroscopy. This fragmentation pattern was discovered by the scientist known as Fred Mac-Lafferty. That's why this rearrangement is known as a Mac-Lafferty rearrangement. Fred Mac-Lafferty in 1956 observed this fragmentation pattern in the compounds containing carbonyl group and gamma hydrogen. Okay, so that's why the rearrangement is known as Mac-Lafferty rearrangement. So what happens in this reaction? In this reaction, the molecule must contain at least gamma hydrogen and the functionality which can form a radical cation. Okay, so you must have gamma hydrogen, alpha, beta, and gamma hydrogen in connection with carbonyl. Okay, so Mac-Lafferty reaction molecule must contain at least one gamma hydrogen and functionality which can form a radical cation. I will explain this. I have example of Mac-Lafferty rearrangement reaction, so I will explain you. An hydrogen rearrangement with unsaturated receptor sites like carbonyl, either ketone or aldehyde. So a hydrogen from a carbon in a gamma position relative to carbon hydrogen or carbon oxygen double bond is that hydrogen is transferred to the that carbonyl carbon. Okay, accompanied by splitting of beta position, and this can be with charge retention or charge migration. That is known as a Mac-Lafferty rearrangement. Okay, so it is relatively long in the ketones. Okay, so we will take one example. So you can see here it is a butanol. So butanol, you can see here it is a butanol, and there is a naming given over here, A, B, and G. A, B, and G means what? That A means alpha position, B means beta position, G means gamma position. So what happens? This aldehyde oxygen is a deficient in the electron. Okay, so that oxygen used to pull that
gamma hydrogen that oxygen used to, वो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो गैमा हाइड्रोजन जो है, गैमा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको खींच लेगा, ठीक है। तो उसको खींच लेगा तो वो कार्बन आइटम जो है गैमा पोजीशन पे वो डिफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा, दैट कार्बन विल ट्राई टू, वो कार्बन नंबर बीटा कार्बन की पोजीशन पे जो कार्बन है उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन का ट्राई करेगा, और वो बॉन्ड फॉर्म होगा, और जैसे ही वो उधर बॉन्ड फॉर्म होगा तो जो बीटा का जो का हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, वो रिलीज हो जाएगा। तो रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको बोलते हैं मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट। Here is example of butanol. So butanol has a molecular weight of 72. ओके, उसके बाद में अगर ये इसका अपन मास स्पेक्ट्रम करेंगे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट करना पड़ेगा फ्रेगमेंटेशन के लिए, ओके। सो जो मास स्पेक्ट्रम में नॉर्मली होता है कि आपको कंपाउंड को फ्रेगमेंट करना पड़ता है, इसके लिए आप वेरियस आयनाइजेशन टेक्निक्स यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर आयनाइजेशन इम्पैक्ट, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट गिरेगा तो इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये ब्यूटानॉल डिवाइड फ्रेगमेंट हो जाएगा दो फ्रेगमेंट में। सो वन फ्रेगमेंट विल molecular rearrangement ion, okay, so that is known as molecular rearrangement ion, and second fragment will be ethene, okay, ethene will be there. So your butanol has a molecular weight 72, that molecular rearrangement ion fragment has a molecular weight of 44, and your ethene has a molecular weight of 28, that is mass to charge ratio, okay. So if you find in the mass spectrum there is a ethene like 28, okay, like 44, that means there is a rearrangement of Mac-Lafferty, okay. So ऐसा अगर पैटर्न आपको दिख गया मास स्पेक्ट्रम में तो आप इजीली समझ जाओगे कि वहां पे Mac-Lafferty rearrangement हो चुका है, okay. So Mac-Lafferty rearrangement is related with nothing but your mass spectroscopy, okay. Let's take next question. So for mass spectroscopy, sample should be in which state? So your options are solid, liquid, vaporized, and all of these, okay. This MCQ, your answer is option C. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सैंपल वेपोराइज्ड फॉर्म में चाहिए। तो आप बोलेंगे कैसे कि सॉलिड सैंपल का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं कर सकते क्या, लिक्विड का नहीं कर सकते क्या, गैस का नहीं कर सकते क्या? सबका कर सकते हैं, ठीक है। सबका मास स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं, लिक्विड सैंपल का निकाल सकते हैं, सॉलिड का निकाल सकते हैं। फिर आप बोलेंगे सर वेपोराइज कैसे आंसर है? सो यू सी, जब भी आपको मास स्पेक्ट्रम निकल आए, इफ यू वांट टू डू अ मास स्पेक्ट्रम ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपाउंड, you have to vaporize that compound, you have to make a vapor of that compound, you have to make a volatile, okay, the compound should be in a volatile form, then only it can be bombarded with your all that impact, electron impact or other whatever ionization techniques are there, okay. So first of all you have to convert a solid sample into vaporized form or liquid sample into vaporized form, okay. If it is gaseous then it's okay, okay. So first of all you have to make the vaporized form of sample, and then you can bombard that sample with high velocity of electron or other ionization technique, and then you can deflect electric field and magnetic field, and then you can sort out, it can be separated according to molecular mass or molecular mass to charge ratio, okay. Then the molecular spectra of that compound can be obtained. So remember, for mass spectroscopy, sample should be in a vaporized state, okay. So that's why here answer is a vaporized state, okay. Let's take next question. So next question is most intense peak in the mass spectrometry. Which one is the most intense peak in the mass spectrometry? Out of base peak, parent peak, molecular ion peak, and all of the above. Out of these, which one is the most intense peak in the mass spectrometry or mass spectrum? So सबसे intense peak कौन सा होता है? So that is known as a base peak, okay. So most intense peak is known as a base peak. Here your answer is option A. I will explain you different type of peaks in the mass spectrum, okay. So in the, you can see in this image, so in this image there are different peaks. So this first peak, very small peak, that is known as a molecular ion isotope peak, okay. After that there is one peak another known as a molecular ion peak, and after that there is a large peak that is known as a base peak, okay. I will explain this each and everything, and rest of the peaks, these peaks are known as a fragmentation ion peaks, okay. So I will explain one by one. What do you mean by molecular ion isotopic peak, okay. So
you know that most of the compound they have isotopic carbon, isotopic hydrogen, isotopic fluorine, isotopic chlorine, bromine, etc etc. Okay, so for that जब भी मॉलिक्यूलर आयन पिक मिलेगा आपको फ्रेगमेंटेशन के बाद, तो मॉलिक्यूलर आयन के पिक के पहले एम प्लस पिक मिलता है, M+1 M+2, तो उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन आइसोटोपिक पिक. सो आइसोटोपिक पिक बोलते हैं उसको, आइसोटोपिक अबंडेंस होता है उसमें. दैट्स व्हाई मॉलिक्यूलर आयन पिक जो मॉलिक्यूलर वेट है उनका एक्चुअल, उसके पहले उसका एक पिक, छोटा सा पिक मिलता है, उसका जो इंटेंसिटी है बहुत ही कम रहता है, मतलब 1/3 रहता है या 1/4 रहता है उसका इंटेंसिटी. ओके, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन आइसोटोपिक पिक. उसका M+1 और M+2, M+1 मतलब क्या होता है, M+1 M+2 का उसका मतलब क्या होता है, M मींस मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो जो भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है उससे +1, अगर ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है 98, जो मॉलिक्यूलर आयन पिक में बोला है 98, अगर एक 99 का मॉलिक्यूलर वेट का पिक आपको मिल रहा है, जैसे मॉलिक्यूलर आयन पिक के पहले, जो मॉलिक्यूलर आयन पिक है उसके पहले अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट +1 या फिर मॉलिक्यूलर वेट +2 का पिक मिल रहा है, दैट इज नोन एज आइसोटोपिक. ओके, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द आइसोटोपिक अबंडेंस इन द कंपाउंड. ओके, तो मॉलिक्यूलर आयन पिक क्या होता है, जैसे आप पर्टिकुलर कंपाउंड को आयोनाइज करते हैं, फ्रैगमेंट करते हैं, तो सबसे पहले उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए रिमूव होते, तो पहला फ्रैगमेंट बनता है, उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसका फ्रैगमेंट बनता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मॉलिक्यूलर आयन पिक. ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन पिक. और मॉलिक्यूलर आयन पिक क्या दर्शाता है आपको, व्हाट इट डिनोट्स, मॉलिक्यूलर आयन पिक डिनोट्स यू द एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड. ठीक है, आइसोटोपिक पिक, मॉलिक्यूलर आयन पिक. ठीक है, समझ में आया. अभी चलते हैं बेस पिक की तरफ. तो बेस पिक मींस इट इज मोस्ट इंटेंस पिक, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसका अबंडेंस बहुत ज्यादा होता है मास स्पेक्ट्रम में. ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेस पिक. दोज पिक व्हिच हैज अ हाईएस्ट इंटेंसिटी दैट इज नोन एज, और इट हैज अ हाईएस्ट अबंडेंस दैट इज नोन एज बेस पिक. ओके, ठीक है. बेस पिक क्या होता है कि उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है मास स्पेक्ट्रम में. अभी इसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा क्यों होता है बॉस, ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर आयन पिक का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, लेकिन उसका इंटेंसिटी बेस पिक के इंटेंसिटी से कम है. ऐसा क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे, तो एक ही रीजन है उसके पीछे कि बेस पिक क्या होता है. सी, आप क्या कर रहे हो मास स्पेक्ट्रम में, आप जो भी कंपाउंड है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो, स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो. ठीक है, किसमें, मास स्पेक्ट्रम में. आपको आयनाइजेशन करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट जो भी है आपका आयनाइजेशन टेक्निक्स, तो उसके थ्रू क्या कर रहे हो आप, वो जो मेन कंपाउंड उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो. ठीक है, सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होते जाएंगे उसका फ्रेगमेंट्स बनते जाएगा, उसका टुकड़े बनते जाएंगे. तो ऐसा एक टुकड़ा मिलेगा आपको कि जो फ्रेगमेंटेशन के लिए रेजिस्टेंट है, ऐसा एक टुकड़ा मिलेगा आपको जो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो भी जितना बॉम्बार्ड करेगा वो रेजिस्ट करेगा. ठीक है, मतलब इजीली ब्रेक नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा ब्रेक होने के लिए. तो ऐसा एक टुकड़ा होता है. सो देयर इज वन फ्रैगमेंट इन द कंपाउंड दैट इज relatively resistant to the breaking. Okay, that is relatively resistant to the fragmentation. That is nothing but the stable structure. वो एक stable fragment होता है जो कि रेजिस्ट करता है किसके लिए, बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस होता है फ्रैगमेंटेशन के लिए रेजिस्टेंस करता है वो पर्टिकुलर फ्रैगमेंट. जैसा एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जैसा आपका बेंजीन रिंग है, इसके पे ऊपर एसिटामिडो ग्रुप है, तो एसिटामिडो ग्रुप आपको इजीली फ्रैगमेंट मिल जाएगा, लेकिन बेंजीन का जो है उसका फ्रैगमेंट नहीं होगा जल्दी. तो दैट इज अ रिलेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर, और वो स्टेबल स्ट्रक्चर होने की वजह से उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई बेस पिक इज नोन एज वो फ्रैगमेंट होता है बेस पिक का, कि वो फ्रैगमेंट बहुत स्टेबल फ्रैगमेंट होता है, जल्दी से जल्दी वो टूटता नहीं है, उसके फ्रैगमेंटेशन होता नहीं, तो स्टेबल पिक होता है स्ट्रक्चर में. ऐसा कोई रिंग होता है स्ट्रक्चर में, दैट इज अ स्टेबल रिंग होता है. सो दैट इज नोन एज अ बेस पिक, उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है. सो हाईएस्ट इंटेंसिटी पिक इज नोन एज बेस पिक. क्लियर. और उसके बाद में जो पिक्स है बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन पिक्स. ओके, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन आयन पिक. सो मॉलिक्यूलर आयन पिक, आइसोटोपिक पिक, बेस पिक, ये आपको समझ में आना चाहिए. सो मॉलिक्यूलर आयन पिक इज आल्सो नोन एज पेरेंट आयन पिक. ठीक है, सो बेस पिक इज अ मोस्ट इंटेंस पिक इन द मास स्पेक्ट्रम. ठीक है, बेस पिक में क्या होता है आपका,
वो जो रेडिकल होता है, वो जो फ्रैगमेंट बनता है उसकी मॉलिक्यूलर आपका जो कंपाउंड उसका ब्रेक डाउन होने के बाद जो एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा एक फ्रैगमेंट रहता है कि बहुत ही स्टेबल होता है, वो जल्दी ब्रेक नहीं होता, उससे आगे जल्दी ब्रेक नहीं होता, उसके लिए और एनर्जी लगेगा ब्रेक करने के लिए। वो जो फ्रैगमेंट है उसका इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होता है और उसको बोलते हैं बेस पीक, विच इज रिलेटिवली रेजिस्टेंट टू द फ्रैगमेंटेशन, मोर फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो उसको बोलते हैं बेस पीक। सो मोस्ट इंटेंस पीक इन द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग बट द बेस पीक। और देयर इज वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, सो मास स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट ऑफ, so on the x-axis you have mass to charge ratio, on the y-axis you have relative abundance or intensity. Okay, so next question वैसा ही आएगा, देखते हैं। So what is the next question? Which one of the following is not ionization technique? Okay, your options are, first one is a mildly, option second is a fast atom bombardment, field ionization or chemical ionization. Then your option C is electrospray ionization and electron impact. Option D is a TOF, that is time of flight. Okay, so one of the following is not ionization technique. Your options are MALDI and LIMS, FAV, then field ionization, chemical impact, then option C electrospray ionization, electron impact, and option D is nothing but the time of flight. Okay, so out of these techniques which one is not a ionization technique? ठीक है, so MALDI means what? Matrix assisted laser desorption ionization. Okay, so it is a ionization technique. LIMS is also ionization technique. Then FAB means what? Fast atom bombardment. Okay, so fast atom bombardment is also ionization technique. Then field ionization is also ionization technique. Chemical impact is also ionization technique. Then electrospray ionization is also ionization technique. Electron impact is also ionization technique. ठीक है, so time of flight, what is time of flight? Time of flight is a detector. Okay, time of flight is a detector in the mass spectrum. Okay, so there are different detectors in the mass spectrum like single focusing, double focusing, time of flight, then quadrupole mass analyzers, then various types of filters. Okay, so time of flight is a mass analyzer, not a ionization technique. So your answer in this case is option D, time of flight. Okay, तो ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें एक और चीज याद रखिए कि जो डिटेक्टर्स होते हैं, मास एनालाइजर जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है, जो मास एनालाइजर होते हैं वो क्या करते हैं? दे यूज टू सेपरेट द फ्रैगमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर मास टू चार्ज रेशो, जिसमें मास टू चार्ज रेशो के तहत उसको सेपरेट करते हैं और उसका मोलिकुलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं अपन सेपरेशन के बाद। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ मास एनालाइजर। ठीक है, तो इसमें जो मास एनालाइजर यूज होते हैं मास स्पेक्ट्रम में, आपका सिंगल फोकसिंग है, डबल फोकसिंग है, क्वाड्रापोल है, उसके बाद आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, आउट ऑफ दिस जो डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है, डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रो, उसका जो है सिलेक्टिविटी वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो विच मास एनालाइजर इज मोर सेंसिटिव और विच आर having highest resolution. Okay, so resolution means what? Resolution means it is the ability to distinguish between two smaller fragment of molecular weight. सबसे ज्यादा resolution किसका होता है मास एनालाइजर में से? So डबल फोकसिंग मास एनालाइजर जो होता है उसका resolution सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो डिफरेंट मास एनालाइजर आप याद रखो कि आपका जो सिंगल फोकसिंग है, डबल फोकसिंग है, क्वाड्रापोल मास एनालाइजर है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, सो इसमें से सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन किसका होता है? आपका डबल फोकसिंग मास एनालाइजर का रिजोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये और दूसरा एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक। ठीक है, कि कौन से सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है और कौन से हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक है। सो विच आर द हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक्स, विच आर द सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक्स। ओके, सो केमिकल इम्पैक्ट, electronic impact and chemical impact, these are the hard ionization techniques. Okay, MALDI, LIMS, fast atom bombardment, field ionization, electrospray ionization, all these are the soft ionization techniques. Okay, so chemical impact, electronic impact, these are the hard, and rest of the all ionization techniques are the soft ionization techniques. Clear? क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में आपको 2 या 3 क्वेश्चन कवर हो चुका है ऑलरेडी, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपका 2-3 क्वेश्चन कवर हो चुका है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मास स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग।
So your options are mass to charge versus abundance, mass to charge versus intensity, mass to charge versus percentage, and option D both A and B. Okay, so जो previous slide में मैंने दिखाया था आपको ये so that is a mass spectrum is a plot of mass to x-axis mass to charge ratio, and on y-axis there is a relative abundance or relative intensity. So mass spectrum is a plot of both. Okay, so mass spectrum is a plot of both, that is a mass to charge ratio versus abundance and mass to charge ratio versus intensity. Okay, so mass spectrum is a plot of both, option A and B. ठीक है, ये आप याद रखो. अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखाया है वहां पे कौन सा मॉलिक्यूलर आयन सिंगली चार्ज इंटैक्ट मॉलिक्यूल. ठीक है, उसके बाद बेस पीक यहाँ पे लिखा है बेस पीक ब्रैकेट में लिखा है स्ट्रॉन्गेस्ट. क्यों स्ट्रॉन्ग होता है कि दैट इज अ फ्रैगमेंट दैट इज वेरी रेजिस्टेंट टू द फ्रैगमेंटेशन, दैट्स व्हाई इट्स इंटेंसिटी इज वेरी हाई एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बेस पीक. उसके बाद के जो पीक होते हैं उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन आयन पीक. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 5. इसमें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बोथ ऑप्शन डी एंड डी, ऑप्शन ए एंड बी. सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फार्माकोजेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ, एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए जेनेटिकली mediated diseases, of genetically mediated diseases, variation in the metabolism in different individual. Option C is variation in the pharmacological response in humans, and option D all of these. So here your option D is the correct answer. Okay, so what is pharmacogenetics? It is a study of variation of pharmacological effect, in the various individual. ठीक है, so हर एक बंदा, हर एक आदमी, हर एक बंदे का जेनेटिक मेकअप अलग है. एवरी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हैज अ डिफरेंट जेनेटिक मेकअप एज कंपेयर टू अदर्स. सो हर एक में जेनेटिक मेकअप अलग है, तो ऑब्वियसली उसमें एब्सॉर्प्शन अलग होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, मेटाबॉलिज्म अलग होगा, एलिमिनेशन अलग होगा, इवन फार्माकोडायनेमिक भी अलग होगा. जेनेटिक मेकअप अलग है तो उसका काइनेटिक्स भी अलग होगा, उसका डायनेमिक्स भी अलग होगा. मतलब अगर पैरासिटामोल कोई आदमी में बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम डोज में एनालिसिक एक्टिविटी दिखाता है, तो ये ऐसा जरूरी नहीं कि वही अमाउंट में दूसरे आदमी में एनालिसिक एक्टिविटी दिखाए. दैट इज नोन एज अ जेनेटिक वेरिएंस. ओके, सो फार्माकोजेनेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ genetically mediated diseases, then variation in the metabolism of different individual, and variation in the pharmacological response in the humans. So your option is nothing but the all of these. Okay, so your correct answer is all of these. Okay, next let's take next question. So आगे का next question कौन सा है? That is phlebitis is a problem associated with which route of injection? Phlebitis is a problem associated with which route of injection? Your options are intramuscular, subcutaneous, intravenous, and intrathecal. Okay, so out of these route of administration, phlebitis is a problem associated with which route? Okay, so here your answer is intravenous. Here is your answer is intravenous. How I will explain. ठीक है, so अगर आप intramuscularly injection देते हो, ठीक है, इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन देते हो, तो वहां पे अगर प्रॉपर केयर के साथ प्रॉपर वेल ट्रेन्ड नर्स अगर है तो इंजेक्शन प्रॉपरली देंगे आपको इंट्रामस्कुलरली. ठीक है, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में क्या होता है, वहां पे मसल में ब्लड सप्लाई तो होता है लेकिन बहुत ही माइन्यूट कैपिलरी होती है वहां पे. ठीक है, तो वहां पे क्या इन्फ्लेमेशन, सूजन या फिर पेन बहुत ही कम बार होता है. ठीक है, अगर एक आध बार पेन हो भी गया तो दैट इज बिकॉज ऑफ वो इंजेक्शन नर्व की नजदीक दिया जाता है. अगर बाय मिस्टेक नर्व की नजदीक दिया गया इंजेक्शन इंट्रामस्कुलरली तो वहां पे पेन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, सबक्यूटेनियस मींस व्हाट, द इंजेक्शन इज गिवन इन द लेयर्स ऑफ बिलो द लेयर ऑफ स्किन. ओके, तो उसमें भी आपको ज्यादा वहां पे इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन या फिर कोई क्लॉटिंग नहीं होगा. लेकिन व्हेनेवर यू गिव इंजेक्शन बाय इंट्रावेनस रूट, जब भी आपको इंट्रावेनस रूट के तहत इंजेक्शन दिया जाता है तो देयर यू आर रप्चरिंग द वेन. वहां पे आप वेन को छेद कर रहे हो, है ना, वहां पे वेन को रप्चर कर रहे हो,
तो रप्चर करने की बात क्या होता, रप्चर मतलब क्या, आप उसको ब्रेक कर रहे हो, किसके यूजिंग नीडल के थ्रू आप उसको ब्रेक कर रहे हो, सुई आप आपके नस में डाल रहे हो, वेन में डाल रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो रप्चर हो जाएगा वेन, तो वेन रप्चर होगा, आप इंजेक्ट किए बाद में आपने निकाल लिया, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका फिर से मैकेनिज्म होता है बॉडी का कि रप्चर हो गया वेन को, तो उसको ठीक करना है बॉडी को, तो वो बॉडी उसको ठीक करने लग जाएगी। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा क्लॉट बनेगा वहां पे, जहां भी आपको अपने छेद किया है वेन को जहां भी छेद किया है नीडल के थ्रू, वहां पे क्लॉट बनेगा, तो क्लॉट बनेगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, थोड़ा सा सूजन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। दैट इज नोन एज अ फ्लेबाइटिस। ओके, फ्लेबाइटिस मीन्स व्हाट, ए लोकल clotting and inflammation and little pain, that is known as a phlebitis. Okay, so phlebitis is a problem associated with intravenous route. Remember ये क्वेश्चन आया था जीपैट में, वैसे तो सभी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आ चुके हैं जीपैट में, नाइपर में, इसलिए तो हम ले रहे हैं। दैट इज नोन एज अ क्रैकर एमसीक्यूज। क्रैकर एमसीक्यूज क्यों है वो, क्योंकि वो बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जो फ्लेबाइटिस एमसीक्यू ऑलरेडी आ चुका है, वो मॉलिक्यूलर आयन का पीक का एमसीक्यू आ चुका है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन का जो है वो क्वेश्चन आ चुका है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब आप बाय हार्ट कर लो। एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से आई एम ट्राइंग टू गिव, मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से हमको समझ में आए। तो फ्लेबाइटिस इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ इंट्रावेनस रूट, ठीक है। इंट्राथिकल रूट मीन्स क्या, इंट्राथिकल रूट मीन्स क्या, उसमें क्या करते हैं अपन, so intrathecal route means the injection is given in the subarachnoid space, in the subarachnoid space of vertebral column, ठीक है। जो भी इंट्राथिकल मीन्स क्या, आपके पीठ में जो आपके पीठ का जो वर्टिबल कॉलम है उसको ब्रेक करके इंजेक्शन देंगे आपको, कहां पे, आपका जो स्पाइन है उसको ब्रेक करके इंजेक्शन देंगे, कहां पे देंगे, वर्टिबल कॉलम में, तो उसको बोलते हैं इंट्राथिकल रूट्स। ओके, सब अरेक्नोइड स्पेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज नोन एज इंट्राथिकल। ओके, तो इंट्राथिकल इंजेक्शन वो होता है, मैक्सिमम इंट्राथिकल इंजेक्शन कहाँ क्यों देते हैं, क्यों रहता है इंट्राथिकल इंजेक्शन, कि आपको रैपिड इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया करना है, कि आपको सबड्यूरल एनेस्थीसिया देना है, उस टाइम पे इंट्राथिकल इंजेक्शन देते हैं। और या फिर आपका कोई आपके ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया है, उसको उसकी जांच करनी है, तो आपको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसको निकालना पड़ता है। अगर सीएसएफ का कोई जांच करना है आपको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, तब इंट्राथिकली एक नीडल रहता है, उसके लिए नीडल रहता है। लक्ष्य आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक नीडल रहता है स्पेशल, उसको बोलते हैं लंबार पंक्चर नीडल। ओके, एलएस नीडल, लंबार नीडल। ओके, सो बहुत बड़ा होता है वो सुई, और वो उसको पीछे आपका जो भी पीठ है, उसके जो भी आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उसको वहां से नीडल इंसर्ट करते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस में, और वहां से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ जो है आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो उसको विड्रॉ करते हैं और उसके बाद में जांच के लिए देते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं इंट्राथिकल रूट। और वैसे ही अगर आपको कोई इंजेक्शन देना है सब एरेक्नोइड स्पेस में, तो इंजेक्शन भी दे सकते हैं यूजिंग स्पाइनल नीडल, ठीक है। बड़ा नीडल होता है वो, आपके रूटीन नीडल जो होता है उससे बहुत लंबा नीडल होता है, 20 सेंटीमीटर, सो दैट इज अ इंट्राथिकल। अगेन वहां पे इंट्राथिकल जो भी इंजेक्शन देने वाले हैं आपका, उसका सबसे पहले आइसोटोनिसिटी होना चाहिए, उसका फ्री ऑफ पायरोजेंस होना चाहिए, उसका स्टेरिलिटी होना चाहिए, ठीक है। ये सब मेंटेन करना पड़ेगा आपको, किसके लिए, इंट्रावेनस। वैसे तो सभी इंजेक्शन के लिए ये जरूरी है, लेकिन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए थोड़ा सा हाइपोटोनिक सोल्यूशन भी होगा तो भी चलता है। तो ये क्वेश्चन आपको फ्लेबाइटिस इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ व्हिच रूट, दैट इज अ इंट्रावेनस रूट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So protein binding of drug will result in, your option helps in the drug absorption, option B delays in the excretion, option C delays in the metabolism, option D all of the above। तो प्रोटीन बाइंडिंग का, उसके अगर ड्रग देने के बाद उसका प्रोटीन बाइंडिंग, वो ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग को प्रोटीन को बाइंड होता है, तो फिर क्या होगा। ओके, ये जो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग विल रिजल्ट इन all of the above. It will result in helps in the absorption, it will also delay the excretion, it will delay the metabolism, that's why it is all of the above। okay, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको कैसे।
मान लीजिए आपने फिनाइल ब्यूटाजोल या फिर कोई भी ले लिया है, उसका एब्सॉर्प्शन हो गया, ओके। अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड होता है, प्लाज्मा प्रोटीन जैसे आपका एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया, ठीक है, उसको अगर बाउंड करता है तो आपके जीआईटी मतलब जो भी आपका स्टमक है वहां का कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इसको मैच करने के वहां तो फ्री, आपके जीआईटी में तो ड्रग फ्री है, ठीक है, लेकिन आपके एब्सॉर्प्शन होने के बाद आपका जो ड्रग है ब्लड में गया और उसने प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड किया, मतलब इट इज नॉट प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म, इट इज प्रेजेंट इन द बाउंड फॉर्म, ठीक है। तो बॉडी समझता है क्या, ब्लड में उसका कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, तो दैट्स वाई वो डिफ्यूजन के लिए ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कम है, जीआईटी में ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां से वो डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई प्रोटीन बाइंडिंग हेल्प्स इन द ड्रग एब्सॉर्प्शन। नाउ इट डिलेज इट्स एक्सक्रीशन, हाउ आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। आपके ब्लड में ड्रग है वो, लेकिन वो फ्री नहीं है, दैट इज इन अ बाउंड फॉर्म, ठीक है, इट इज बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन, सो इट इज नॉट इजी टू एक्सक्रीट, किडनी विल नॉट रिकॉग्नाइज, kidney will not excrete a bound form of drug, it will excrete if drug is in a free form, okay, so it will delay the excretion again, okay, then delay the metabolism, obviously again if drug is in a bound form, अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन को बाउंड है तो मेटाबॉलिज्म के लिए फ्री नहीं है, सो obviously अगर जब तक बाउंड है वो प्लाज्मा प्रोटीन को तब तक उसका एक्सक्रीशन भी नहीं होगा और उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ओके। सो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग विल रिजल्ट इन all of the, it will result in, it will help the drug absorption, it will delay the excretion, it will delay the metabolism, it will do all of them, okay. So protein binding of drug will result in all of them, clear. Now we will take next question. So what is next question? Phase second reaction of drug metabolism includes all except, your options are sulfate conjugation, glucuronide conjugation, hydroxylation, oxidation. So here your correct option is option D, oxidation. Correct option is option D, oxidation. So you must remember what are the metabolic reactions, phase first and phase second reaction. What are the metabolic reactions? In phase first there is oxidation, reduction and hydrolysis, okay. Oxidation, reduction, hydrolysis, okay. So these are the phase first reaction. What is phase first reaction? What is the importance of phase first reaction? In the phase first reaction, various groups are incorporated to the molecule so that molecule will become water soluble. आप एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर कोई ड्रग को आपके बॉडी के अंदर जाना है, ठीक है, if any drug should have adequate lipid solubility to cross the cell membrane, okay. अगर किसी ड्रग को एब्सॉर्प्शन होना है, बॉडी में एब्सॉर्ब होना है, तो इट शुड हैव लिपिड सोलिबिलिटी, अगर वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो जल्दी एब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एब्सॉर्ब तो हो गया, उसके बाद क्या, उसको निकालना तो पड़ेगा ना बॉडी के बाहर, उसका काम होने के बाद निकालने के लिए लिपिड सोल्यूबल ड्रग नहीं मांगता, बस उसके लिए लगता है वाटर सोल्यूबल लगता है। तो उसके बाद में जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है उसको वाटर सोल्यूबल बनाने का प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आपके काइनेटिक्स भाषा में अगर बोलना है तो मेटाबॉलिज्म क्या, कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल ड्रग बनाओ, तो दैट इज नथिंग बट द मेटाबॉलिज्म। सो फेज फर्स्ट रिएक्शन कौन सा है, फेज फर्स्ट रिएक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस। तो उसमें क्या होता है, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऐड किए जाते हैं मॉलिक्यूल में ताकि मॉलिक्यूल वाटर सोल्यूबल बन जाए। जैसे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, जैसे एसिड ग्रुप हो गया, वो ग्रुप्स ऐड किए जाते हैं मॉलिक्यूल में, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो जो फेज फर्स्ट रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस, ओके। सो फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, व्हाई, बिकॉज इन द फेज फर्स्ट देयर इज एडिशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स टू द कंपाउंड सो दैट कंपाउंड विल बिकम वाटर सोल्यूबल। क्यों करना है, बिकॉज फॉर एब्सॉर्प्शन ए कंपाउंड मस्ट बी लिपिड सोल्यूबल एंड अनआयोनाइज्ड, ओके, एंड फॉर एक्सक्रीशन it should be water soluble and ionized, okay. So that's why, so you have to make, your body used to make efforts to make a lipid soluble drug into water soluble drug. So ये हो गया फेज फर्स्ट। सो फेज सेकंड रिएक्शन क्या होता है मेटाबॉलिज्म का, सो फेज सेकंड रिएक्शन उसको बोलते हैं सिंथेटिक रिएक्शन और दैट इज आल्सो नोन एज अ कॉन्जुगेशन रिएक्शन। सो फेज सेकंड रिएक्शन आर आल्सो नोन एज सिंथेटिक रिएक्शंस और कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, उसमें वेरियस कॉन्जुगेशन होता है, ओके। तो उसमें क्या होता है, सल्फेट कॉन्जुगेशन होता है, ग्लूकोयूरोनाइड कॉन्जुगेशन होता है,
उसमें हाइड्रोक्सिलेशन होता है, उसमें एस्टाइलेशन होता है, उसमें मिथाइलेशन होता है। ये सब रिएक्शन कॉन्जुगेट रिएक्शंस होते हैं ताकि कंपाउंड को वाटर सॉल्युबल बना सके। अगर वो फेज फर्स्ट में वाटर सॉल्युबल नहीं बन गया कंपाउंड तो उसको फेज सेकंड में बना। तो ये सब ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू मेक ए ड्रग वाटर सॉल्युबल। रिमेंबर, आपको ड्रग बॉडी में अंदर जाने के लिए लिपिड सॉल्युबल होना मांगता, बॉडी से बाहर निकलने के लिए उसको वाटर सॉल्युबल होना मांगता। क्यों वाटर सॉल्युबल होना मांगता ड्रग को बाहर निकलने के लिए? क्योंकि सबसे मेजर रूट क्या है एलिमिनेशन एक्सक्रीशन का? योर यूरिन, एंड यूरिन इज नथिंग बट द वाटर। So you have to make your body does efforts to make a lipid soluble drug into the water soluble by addition of different groups, by changing the pharmacokinetics of that drug. So various physico-chemical properties of that drug is changed. That's why it is known as a metabolism. But metabolism is nothing but that is a relatively inactivation of drug. Okay. So what is where it takes the metabolism takes place? So most of the metabolism is carried out by metabolic factory of liver, metabolic factory of body, that is nothing but the liver. So most of the drugs are metabolized in the liver, and that's why most of the drugs has hepatotoxicity. क्यों होता है hepatotoxicity? क्योंकि सब काम अगर liver ही करने लगेगा। See, every drug is a foreign to our body. Every chemical, what are the chemical we are taking? These are nothing but the synthetic drugs and they are foreign to our body. So ये जो foreign है केमिकल, जैसे ही आप लेते हो तो बॉडी क्या सोचती है? बॉडी सोचती है इट इज अ फॉरेन, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तो उसको क्या करेंगे? फिर पहले उसको लिवर को भेज दो, लिवर क्या करेगा? उसको डिहाइड्रेट करके निकाल देगा बाहर। सो उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, क्लियर? Now we'll take next question. So all are example of low therapeutic index. All drugs are examples of low therapeutic index drugs except your options are aminoglycosides, theophylline, lithium, and NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Okay, so here your correct option is option D. That is non-steroidal anti-inflammatory drugs. Okay, so I will explain you. Don't worry. So you must be aware about what do you mean by therapeutic index? Okay, what do you mean by therapeutic index? You must be aware about that. So I will explain you therapeutic index. What do you mean by therapeutic index? So you can see here in this diagram. So it is a dose response curve. Okay, it is a dose response curve. If you see the dose response curve, it is a bell shaped curve. Okay, so on the y-axis plasma concentration is there, on the x-axis there is time. Okay, so मान लीजिए आपने ड्रग दिया, वो ड्रग देने के बाद एब्सॉर्प्शन होगा उसका, और एक लेवल तक उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। जो ब्लू लाइन है फ्रॉम द बॉटम, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है उसको बोलते हैं, ये जो लाइन है कौन सी? ये डिजायर्ड रिस्पॉन्स के नीचे की, सो उसको बोलते हैं सब थेरेपेटिक लेवल। मींस इस लेवल अगर ये कॉन्सेंट्रेशन आगा होगा ब्लड में तो उसका इफेक्ट नहीं दिखाएगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब थेरेपेटिक लेवल। ठीक है, और जो भी आपका थेरेपेटिक इफेक्ट कब दिखाई देगा? एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर अगर ड्रग है बॉडी में तभी आपका उसका थेरेपेटिक इफेक्ट मिलेगा। जो भी है उसको बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, MEC। ठीक है, सो ये जो है डिजायर्ड डोज रिस्पॉन्स, यहाँ पे जो लाइन है आपकी, तो वो लाइन को बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ठीक है, उसके बाद में वो ड्रग का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आएगा यहाँ, तो यहाँ तक। ठीक है, जो एडवर्स इफेक्ट बोल रहे हैं वहां लिखा है, वहां तक अगर आएगा तो उसको बोलते मैक्सिमम टॉलरेबल डोज और मैक्सिमम टॉक्सिक डोज। ओके, तो इसके अंदर ही अगर द डोज बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन एंड बिटवीन टॉक्सिक इफेक्ट, द मिनिमम टॉक्सिक डोज। ओके, इसके बीच में जो है उसको बोलते हैं थेरेपेटिक विंडो, उसको बोलते हैं थेरेपेटिक रेंज। ओके, the concentration of drug between the minimum effective concentration and maximum tolerable dose. So that window is known as therapeutic window. Okay, that is known as therapeutic window, or that is also known as therapeutic range. That range is known as therapeutic range. So range between minimum effective concentration and maximum tolerable dose, that is known as a therapeutic window or therapeutic range, not therapeutic window. Actually it is therapeutic window and therapeutic range.
Okay, it is known as therapeutic window or therapeutic range. The concentration of drug between minimum effective concentration and maximum tolerable dose, that is known as a therapeutic window or therapeutic range. ठीक है, तो अगर मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के नीचे कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग का बॉडी में, तो वो इफेक्ट नहीं दिखाएगा, उसको बोलते हैं सब थेरेपेटिक. अगर मैक्सिमम टॉलरेबल डोज से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में ड्रग का, तो दैट विल लीड्स टू साइड इफेक्ट. ठीक है, उसको एडवर्स इफेक्ट बोलेंगे. फिर एडवर्स इफेक्ट दिखाना चालू करेगा ड्रग, क्योंकि उसका थेरेपेटिक मैक्सिमम टॉलरेबल डोज जो है उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में, तो वो दिखाएगा साइड इफेक्ट्स. नाउ व्हाट इज थेरेपेटिक इंडेक्स? What is therapeutic index? So therapeutic index is nothing but the LD50 divided by ED50. ठीक है, so LD50 क्या है? LD50 means the dose required to produce a therapeutic effect in a 50% of population. Okay, that is known as effective dose. Okay, so LD50 क्या होता है? Lethal dose 50 means क्या? The dose of drug that is required to produce a lethal or toxic symptoms in the humans in the 50% population. Okay, so LD50 divided by ED50. So ED50 divided by LD50. So that is known as a therapeutic index. Effective 50% effective dose, 50% lethal dose. That is known as a therapeutic index. Okay, so that therapeutic index is the measure of your therapeutic index is the measure of your. There are different drugs. Okay, so some drugs are narrow therapeutic index, some drugs are having high therapeutic index. Okay, so safety of drug. So agar those drugs which have high therapeutic index means safety of drug, that drug is more safe. Okay, so उसका safety establish है. अगर वो drug high therapeutic index है, मतलब उसका safety अच्छा है. अगर कोई ड्रग लो थेरेपेटिक इंडेक्स है, मतलब उसका सेफ्टी नहीं है और वो उसका बहुत ही कम रेंज है. ओके, थेरेपेटिक रेंज उसका कम है, थेरेपेटिक इंडेक्स उसका कम है, मींस क्या? वो उसके बाहर वो ज्यादा सेफ नहीं है. ओके, सो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग्स आर नॉट मच सेफर. ओके, सो वाइड थेरेपेटिक इंडेक्स और थेरेपेटिक इंडेक्स, दोज ड्रग्स हैविंग हाई थेरेपेटिक इंडेक्स, दे आर relatively safer drug. Okay, so what are the examples of narrow therapeutic index drugs? First of all, high therapeutic index drugs. What are the examples? Your NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. All the drugs are a high therapeutic index. Your sedative hypnotics like barbiturates, most of the antibiotics are having high therapeutic index. Then again, beta blockers, they are having a high therapeutic index. So what are the low therapeutic index drugs? Drugs like lithium, neuroleptic like phenytoin, then phenobarbital, some antibiotics like gentamicin, vancomycin, amikacin, digitoxin, immunosuppressive agents, theophylline, lithium, aminoglycosides. All these are the narrow therapeutic index drugs. Okay, so narrow therapeutic index drugs क्या होता है? वो ज्यादा सेफ नहीं रहता है, और हाई थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग जो होता है वो ज्यादा सेफ रहता है. ठीक है, क्लियर? All drugs are the example of low therapeutic index except non-steroidal anti-inflammatory, because these drugs are having high therapeutic index. जो पहले तीन ऑप्शन है, aminoglycoside, theophylline, lithium, they belongs to low therapeutic index or narrow therapeutic index. Okay, so they have very little safety of margin, जिसको अपन बोलते हैं. So narrow therapeutic index drugs, they are having less safety of margin. Okay, as compared to the high therapeutic index drugs. तो जो भी ड्रग उनका अगर हाई थेरेपेटिक इंडेक्स है तो उनका सेफ्टी मार्जिन भी हाई है. अगर कोई ड्रग्स का थेरेपेटिक इंडेक्स कम है तो उसका सेफ्टी ऑफ मार्जिन भी कम है. इज दैट क्लियर? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया था थेरेपेटिक रेंज के बारे. सो व्हाट इज थेरेपेटिक रेंज? द कॉन्सेंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एंड मैक्सिमम टॉलरेबल डोज. So the concentration between these two, that is nothing but the therapeutic range or therapeutic window. They are the synonyms. Okay, last year में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर. So this was all about the today's 10 MCQs. Thank you very much for watching this video, and if you want these questions, they are present in this book and my number are given on the screen. If you anybody is interested, अगर आपको कोई इंटरेस्ट है इस बुक में तो you can order. Thank you very much for listening, and please
प्लीज ये वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ होती है, वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो यार आपके लिए वीडियो बनाता हूँ बॉस, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, चैनल पर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं आपको नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।